Okay. Okay, so we can start the session right now. So first of all, thank you very much, IBA team, for joining today's session, and thank you very much, Dr. Junaid and Rizwan Saab from IBA. So this session is about the IBA's National uh, Talent Hunt Program. We welcome you on behalf of Aga Khan Education Board, and we hope this session is going to be very fruitful and beneficial for the students who are aspiring to get into IBA. So without delaying further, I would like to hand over to you, Rizwan Saab and Dr. Junaid, to continue with your session. And we are also recording this session. We will share it with students uh, later on as well. Yeah, so let me make you host. Rizwan Sahab, you are host now, so you can share the presentation, whatever you want to share, and you can continue with the session. Okay. जी जनाब साहब ये स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी, this is visible. Your screen is visible, yes. Right. Thank you, Tanar sir, and thank you the entire management of the AQB and the Khan management. जिन्होंने आज हमें मौका दिया to deliver the lecture on the National Talent Hunt program, which is the IBA main flagship program. We are running this program for the last 19 years, and we are glad that we have Dr. Junaid as well, who is a director Talent Hunt program. He is a part of the IBA Karachi since 2018 from the Talent Hunt department. And before moving on to the formal session, I would like to request Dr. Junaid to please share some few words about the IBA and the Talent Hunt program. Over to you, sir. Might be he's not audible. No problem. I will continue my session. Am I audible now? Yes, sir. Yes, you are. Yes, Okay, sir. so my name is Junaid Alam Khan. I am the director of Talent Hunt program. So I joined this program as a director in 2019. Also, I am working as an associate professor of mathematics in IBA. Okay, so this program is a NEET ka merit program for deserving students who cannot afford IBA and who want to take admission in IBA. Okay, so Mr. Rizwan will give you a brief presentation about this program. Over to you, Rizwan. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Okay. Now let's begin. Before moving on, मैं थोड़ा सा ना आपको IBA कराची की डिटेल के हवाले से बताना चाहूँगा कि IBA basically what we are offering to the particular students कि हमारे पास कितने different किस्म के programs available हैं. Before moving on, एक थोड़ा सा history को थोड़ा recap कर लेते हैं, review कर लेते हैं कि basically when we established just that institution, we established this institute in 1955 and almost 75 से ज़्यादा हमारे हमको हो चुके हैं इस इदारे को और इसमें हम लोगों ने जब हमने फर्स्ट अपना flagship program ऑफर किया था in 1955 तो we offered in the master's program. Later on फिर हमने different programs ऑफर किए in 1984 हमने we collaborated with IEM and we started our first degree program with the name of BBA and the BScs program जो कि हमारा main flagship program. Later on, we first launched our first PhD program, which we provide education in the CS program.
एंड 1955 से लेके 2012 तक हमारा जो एकेडमिक ईयर्स गुजरे हैं उसमें तकरीबन 10,000 प्लस अलुमनाई मेंबर्स ने हमें ज्वाइन किया और आईबीए को अपना एज अ कैरियर इंस्टीट्यूट चूज किया और वो आज अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आज वो पूरी अवधि की मतलब पाकिस्तान से बाहर जितनी भी कंट्रीज अवेलेबल है वहां पे सब जगह पे अपनी रिप्रेजेंटेशन प्ले कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि आईबीए इज अ वेरी ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट। उस पर हमारे पास एक बेस्ट बिजनेस स्कूल है जिसमें हमारे पास वेरियस अपॉर्चुनिटीज होती हैं डिफरेंट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के हवाले से। अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के हवाले से परस्यू करना चाहे, कोई स्टूडेंट बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन परस्यू करना चाहे, तो वेरियस अपॉर्चुनिटीज हैं स्टूडेंट्स के पास। थोड़ा सा देख लेते हैं एकेडमिक ईयर्स के हवाले से। 2013 में वी स्टार्टेड अवर न्यू प्रोग्राम विद द नेम ऑफ सोशल साइंस लिबरल आर्ट्स एंड वी आल्सो ऑफर बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। लेटर ऑन 2021 में हमने 3 डिफरेंट स्कूल को एस्टैब्लिश किए विद द नेम विद द कांसेप्ट के अगर आप नेशनल यूनिवर्सिटीज का ये हायरार्की को देखें, इनके स्ट्रक्चर्स को देखें तो दे हैव सिमिलर डिफरेंट प्रोग्राम्स एज वेल। तो अगर हम अपने इम्पैक्ट की बात करते हैं तो ओवरऑल वी हैव 16,000 अलुमनाई मेंबर्स जो कि नॉट पाकिस्तान बट आउट ऑफ द कंट्री, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कंट्रीज में अपनी रिप्रेजेंटेशन प्ले ऑफ कर रहे हैं। तो ये जो मैप आप देख रहे हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है आईबीए कराची की, जो आईबीए से पढ़ने के बाद डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज में जाके अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। We have different role models as well जिसमें हमारे जो alumni members हैं जो IBA का पार्ट रह चुके हैं, जिसमें हमारे पास अगर आप सदर पाकिस्तान फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान देखते हैं तो 1965 में इनको alumni रह चुके हैं, प्लस शौकत अजीज, we have the असद उमर, अगर आप देखते हैं अरुणा हुसैन, she's also did her masters in the MBA class of 1999 की बात कर रहे हैं। अलमनस साबिर समी, ठीक है, वो हमारे चीफ ग्लोबल ऑपरेटिंग ऑफिसर है एट द केएफसी। आमिर अदनान एंड नवीन खान, सिकंदर सुल्तान, आमिर कुराचा, वन ऑफ द बेस्ट अलुमनाई मेंबर। मानू शहजाद। बिफोर मूविंग ऑन दिस पॉइंट मैं एक बात यहाँ पे जरूर हाईलाइट करूंगा कि वी आल्सो इनकरेज स्टूडेंट्स कि अगर कोई पैशन रखता है एनी फील्ड, चाहे वो स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो, तो वी आल्सो इनकरेज स्टूडेंट्स कि अगर कोई स्पोर्ट्स के हवाले से पैशन रखता है एनी फील्ड तो उसको यहाँ पे मौके दिए जाते हैं। और इनफैक्ट आईबीए कराची में डिफरेंट स्टूडेंट जब अपने डिग्री प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो डिफरेंट अपने पैशन के हवाले से डिफरेंट सोसाइटीज को भी ज्वाइन करते हैं। तो मानूर सिराज इज अ वेरी वंडरफुल एग्जांपल फॉर अस कि जिन्होंने अपने पैशन, स्पोर्ट्स पैशन के साथ साथ अपने डिग्री को परस्यू किया, माशाल्लाह आज ये एज एन ओलंपियन एंड नेशनल बैडमिंटन चैंपियन का एजाज भी इनके पास है। वी हैव कवल अहमद जो सोल सिस्टर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वी आल्सो हैव अली खुर्शीद अहमद जो कि फेसबुक एमर्जी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जफर मसूद, ही इज आल्सो एन अलुमनस ऑफ क्लास 1991, सीईओ ऑफ द बैंक ऑफ पंजाब। मोहसिन खान जो हमारे डिफरेंट प्रोग्राम को ऑफर कर रहे हैं, प्लस शरियार मुनावर। समनूर नबी जो कि हमारी आईबीए कराची के अलुमनस रह चुकी हैं लेकिन अभी करंटली वो अपने मास्टर्स प्रोग्राम और अपने पीएचडी प्रोग्राम को परस्यू कर रही है। शुजा ताहिर जो कि अलुमनस है क्लास 17 की, उसने अभी अपने मास्टर्स को भी परस्यू कर लिया है। वी आल्सो हैव सैयद मोहम्मद वकास जो कि हमारे अलुमनस हैं और अभी वो अपने जो मास्टर्स प्रोग्राम है वो परस्यू कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी फ्रॉम यूएस। Currently we do have more than 120 alumni members जो कि एज अ सीईओ काम कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आईबीए आपके अंदर 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में या आपके मास्टर्स प्रोग्राम में वंस यू आप किसी भी प्रोग्राम को ऑप्ट करते हैं आईबीए, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो चाहे वो ग्रेजुएट हो, लेकिन वो जो स्किल्स आपको डिलीवर करेगा जिसमें आप जब अपनी स्किल्स लेने के बाद जब आप मार्केट इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको आपकी जो हायरिंग होती है वो हाथों हाथ होती है। उसकी वजह ये कि बेसिकली वो जो रिग्रेस ट्रेनिंग होती है, रिग्रेस आपकी जो लर्निंग्स होती है वो आपको एम्पावर करती है कि आप किसी भी कंपनी में एज अ टॉप लीडिंग पोजीशन पे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। लाइफ एट आईबीए देख लेते हैं। लाइफ एट आईबीए बहुत हमारी वंडरफुल है। वी हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी फैसिलिटी जो हमारे पास मेन कैंपस में स्टूडेंट एट द मेन कैंपस एंड सिटी कैंपस में दोनों जगह पे अवेलेबल है। वी हैव अ सेपरेट क्रिकेट ग्राउंड एज वेल जिसमें हमारे स्पोर्ट्स फैसिलिटी में हम ज्यादा फोकस स्टूडेंट को इनकरेज करते हैं। वी हैव अ सेपरेट ग्राउंड स्टूडेंट सेंटर एंड अलुमनाई सेंटर जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट अपनी दूसरी अदर रिक्रिएशन एक्टिविटीज को ऑफर करते हैं।
उसके अलावा हमारे पास इंडोर गेम्स की फैसिलिटी है, जिसमें हमारे पास जिम्नेजियम है। किसी का अगर माइक ऑन है तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज म्यूट कर लें। थैंक यू। We have definitely we also have a basketball court, badminton court, archery, cafeteria, jamming room. यहाँ पे एक और बात पेश करूंगा कि वी ऑल्सो इनकरेज स्टूडेंट जो के म्यूजिक से लगाव रखते हैं, इंटरेस्ट है उनको, सिंगिंग का, किसी भी ड्रम प्ले करने का शौक है या किसी भी इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक है, अगर आपको प्रॉपर गाइडलाइन, प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, तो डेफिनेटली वी हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट, सेपरेट रूम जो कि स्पेसिफिकली स्टूडेंट की म्यूजिक से रिलेटेड यहाँ पे एक्टिविटीज के लिए इनको इंकरेज किया जाता है। सेपरेट जिम्नेजियम, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हमने जिम्नेजियम एस्टैब्लिश किया हुआ है इन बोथ कैंपसेस, एट द सिटी कैंपस एंड मेन कैंपस। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त मेन कैंपस की है। वी आल्सो ऑफर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जिसमें हम टू एंड फ्रो मेन कैंपस, सिटी कैंपस एंड सिटी टू मेन, हम डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन भी सर्विस ऑफर करते हैं। उसके अलावा वी हैव अ सेपरेट बॉयज हॉस्टल, ये हमारा अमन टावर पे सिटी कैंपस में गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है, जहाँ पे रूम की इस तरह से हमारे पास डिजाइन होते हैं। क्लासरूम, जिसमें हमारे पास जो स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जिसमें हम लोगों ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए स्टूडेंट्स को लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। वी ऑल्सो हैव दिस टाइप ऑफ कैटेगरी, जिसमें हम स्टूडेंट्स को भी लेक्चर प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एम्पी थिएटर। We have a separate auditorium in both campuses. This is located at the city campus, JS Auditorium के नाम से मशहूर है। We do have separate labs available in both campuses. Specifically, अगर कोई हमें कहता है कि हमें फैकल्टी की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं, हमें कुछ स्पेसिफिकली स्टूडेंट को ट्रेन करना है in that curriculum, तो we do have a separate lab for that as well. ये different computer labs available हैं in both campuses. We have comfortable lounges in both at the main campus, student lounge. Schools and programs की इसकी हम बात कर रहे हैं, जिसपे हमारा मेन फोकस है कि हमें जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो इस वक्त फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अपने एग्जाम्स को AQ बोर्ड के थ्रू अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास 7 डिफरेंट प्रोग्राम्स है जिसपे हमें इनको फोकस करना है। पहला प्रोग्राम यानी कि BBA है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड इज BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, थर्ड इज BS कंप्यूटर साइंस, BS economics and mathematics, and social science liberal arts, and one program is missed, that is called the BS mathematics. तो 7 different programs की अगर मैं क्राइटेरिया की बात करता हूँ बेस्ड ऑन द डिसिप्लिन जो आप लोग फोकस कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आपकी प्री इंजीनियरिंग की, तो प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जिसने मैथमेटिक्स पढ़ी भी है अपने करिकुलम में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में, तो उसके पास ऑप्शंस हैं कि वो सारे प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। उसके पास मतलब चॉइस उसके पास होती है सारे प्रोग्राम्स की, लेकिन 7 प्रोग्राम्स इस ओपन कर दिए जाते हैं और इसकी चॉइस पे वो स्टूडेंट खुद ऑप्ट करता है उसके पैशन के अकॉर्डिंगली। एज फार एज द मेडिकल स्टूडेंट इज कंसर्न, कि अगर कोई स्टूडेंट अगर मेडिकल बैकग्राउंड का है तो उसके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं IBA, जिसपे हम उनको इंकरेज करते हैं कि वो जरूर अप्लाई करें, लेकिन उनको एक सर्टेन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बिफोर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट, मैं आपको पहले 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में बता देता हूँ, जिसमें मेडिकल के स्टूडेंट या वो स्टूडेंट जिन्होंने कॉमर्स परस्यू कर रहे हैं या इन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी हुई अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर, तो पहला प्रोग्राम है BBA, BS Accounts, BS Economics, and the last one is BS Social Science and Liberal Arts. ये 4 different programs पे आप एडमिशन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर बैकग्राउंड का, मतलब डिसिप्लिन, यानी कि आपका प्री मेडिकल अगर है या जनरल साइंस है या आपने कॉमर्स पढ़ा हुआ है, तो आप इस बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं IBA। लेकिन IBA की एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो ये कि IBA आपका टेस्ट कंडक्ट करेगा, वो होगा SAT बेस्ड। तो SAT के हवाले से डिटेल्स में थोड़ा सा आगे प्रोसीड बताऊंगा आपको। थोड़ा सा पहले प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं कि प्रोग्राम कितने किस्म के हैं। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द BBA। अगर आप स्कूल वाइज देखते हैं तो वी हैव 3 डिफरेंट स्कूल्स।
I request the participant to please turn the mute करें अपने mic को ताकि मैं disturbance हमारी तरफ ना हो. Thank you very much. We have School of Business Studies जिसमें हमारे दो major program fall करते हैं BBA and the second one is BS Accounting and Finance. We have another school with the name of School of Economics and Social Science. तो पहला program है BS Economics. And second is economics and mathematics, and the last one is BS social science and liberal arts. We also offer, we have another program with another school that is called the School of Mathematics and Computer Science. जिसमें हमारा basic जो हमारे दो major program है जिसमें that is BS Computer Science and BS Mathematics. तो program wise देख सकते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि program क्या डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिलती है IBA कराची. IBA का जो मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम है दैट इज BBA जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स को मिक्स एसेंशियल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं सोशल साइंस लिबरल आर्ट्स के हवाले से. इस पे आपको रियल लाइफ हैंडलिंग प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं फाइनल सेमेस्टर में. और आपको जो मेजर फोकस है आपकी जो पूरे करिकुलम का जो एसेंस है वो ये कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे आपको इंश्योर किया जाता है और आपको उस लेवल पे आपको सिखाया जाता है कि अगर आप जब ग्रेजुएट होने के बाद जब किसी इंडस्ट्री पे जाएं तो आप किसी भी इंडस्ट्री को आप चूज करना चाहें तो आप पे आपको कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े. सिमिलरली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो हमारे पास होते हैं वो विद इन सेमेस्टर भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को भी अप्रोच करते हैं. यानी कि अगर आप एक्सचेंज प्रोग्राम की बात करते हैं तो वी डू हैव इंटरनेशनल लिंकेजेस विद द अदर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज जो हमें डिफरेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं IB के स्टूडेंट्स को. और उसमें भी स्टूडेंट जो है विद इन सेमेस्टर अगर कोई 5th सेमेस्टर में 7th सेमेस्टर में अगर अपना 1 सेमेस्टर स्पेंड करना चाहे एट दी इन एनी यूनिवर्सिटी तो वो इसको परस्यू कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वी हैव अनदर प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड द BS अकाउंटिंग फाइनेंस. ये हमारा एक ऐसा एग्जामिशन प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास एक जनरस एग्जामिशन मिली हुई है फ्रॉम द ICAP एंड ACCA जिसमें हम लोग ICAP के मेजर 4 मॉड्यूल एग्जाम करते हैं और ACCA की जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जो ACCA के सर्टिफिकेशन में रिक्वायर्ड होते हैं वो यहाँ पे एग्जाम होते हैं. Along with that, we also reduce the training program. यानी कि अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे BS अकाउंटिंग फाइनेंस परस्यू करने के बाद CA कंप्लीट करना है तो डेफिनेटली उसका जो टेन्योर होता है ट्रेनिंग बार पीरियड होता है वो भी रिड्यूस कर दिया जाता है. और इसके अलावा अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से अगर आप कोई सर्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो उस पर भी आपको एग्जामिशन दी जाती है. वी ऑल्सो ऑफर फाइनेंस कोर्सेज एंड विच आर अलाइंड विद द CFA लेवल 1. जो स्टूडेंट ग्रेजुएट करता है फ्रॉम द BS आफ्टर गेटिंग एजुकेशन फ्रॉम द BS अकाउंटिंग फाइनेंस तो उनके पास वेरियस प्रोस्पेक्ट्स ओपन होते हैं प्लस उनके पास major big audit firm of this multinational banks or किसी भी pharmaceutical company को वो join कर सकते हैं. We also have a BS Social Science and Liberal Arts program that is the main. इसका जो major focus है वो यही है कि आपकी जो interdisciplinary program और आपकी जो major focus है आपकी जिस स्टूडेंट का अगर इंटरेस्ट है साइकोलॉजी और उसका इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में है मीडिया कम्युनिकेशन में है स्टडीज में है और हिस्ट्री से अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है. इस पे आपको अपॉर्चुनिटी ये मिलती है कि आप अगर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं जिसमें आपको 2 इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है प्लस आपके पास एक 5 ईयर रिसर्च प्रोजेक्ट करने का मौका मिलता है जिसमें आपको वही करिकुलम के साथ आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है जिसमें आप अपने रिसर्च का कंपोनेंट को मजीद हाईलाइट करते हैं. Along with that, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे मेजर फोकस किया जाता है ओवरऑल IBA के जितने करिकुलम ऑफर किए जाते हैं तो उसमें भी इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी सेम मॉडल के ऊपर वही टैक्टिक्स और स्किल्स सिखाई जाती है. प्लस CS ऐसे सारे स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड होता है उसके पास अपॉर्चुनिटीज होती है या तो वो किसी सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी एजुकेशन IT बेस्ड हो या फार्मास्यूटिकल बेस्ड हो या ई-कॉमर्स बेस्ड हो वो उसको ज्वाइन कर सकता है. We have another program with the name of BS Economics and Mathematics that is 4-year degree program जिसमें हम लोग मेन फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं इस पे आपके बेसिक आपके इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स को परस्यू करते हैं. उसके अलावा इस पे आपका जो मेजर फोकस होता है आपकी जो मेन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो पब्लिक सेक्टर के हवाले से जो अराउंड करती है सराउंड करती है उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं और उनको उस
से रिलेटेड केस स्टडीज और वो फोकस अटेंशन कोर्सेज हम करवाते हैं, ताकि स्टूडेंट जब वो इतना एम्पावर हो जाए तो फिर डिफरेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे इंटर्नशिप के लिए जाए, चाहे वो किसी जॉब के लिए जाए, तो वहां पे इसको डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। अलॉन्ग विद दैट इसमें स्टूडेंट के पास डिफरेंट पोजीशन मिलती हैं, जिसमें आपको प्राइवेट पब्लिक सेक्टर या डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज या किसी भी एजुकेशन सेक्टर को आप ज्वाइन कर सकते हैं एज इकोनॉमिस्ट के तौर पर। और डेफिनेटली आईटी का जो ग्रेजुएट होता है इसको डेफिनेटली बहुत अच्छी एज मिलता है इन द इंडस्ट्री। जब हम अपने इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स प्रोग्राम की बात करते हैं तो वेरियस स्टूडेंट्स हमें ये रिक्वेस्ट की थी कि सर आप इसको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को आप थोड़ा सा डिफर करें, सेपरेट डिग्री प्रोग्राम के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस करवाएं। तो विद दैट हमने इस प्रोग्राम को 2018 में दोबारा से रीलॉन्च किया विद द कॉन्सेप्ट कि हमने इकोनॉमिक्स को बिल्कुल सेपरेट कर दिया। व्हाट पॉजिटिव फीडबैक इज दैट कि इसमें हम लोगों ने उन स्टूडेंट्स के लिए एक और प्लस पॉइंट रखा है कि अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल बैकग्राउंड का है और उसका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स का है, लेकिन उसने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी हुई, तो हम उसको ये इंश्योर करवाते हैं कि इसमें किसी किस्म के मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते। हाँ हाउएवर, लेकिन जब आप आईबीए के एंट्रेंस टेस्ट की आप बात करते हैं तो आपको उस करिकुलम के लिए आपको अपने आप को इंश्योर करना होता है कि आपने आईबीए के एप्टीट्यूड टेस्ट में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मैथ्स के साथ आपने इंग्लिश को फोकस किया, तो ही आप आईबीए के टेस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन जब वंस यू enrolled in the BS Economics program, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप थ्रू दैट डिग्री प्रोग्राम अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की बेहतरीन बात यह है कि इसमें आपको डिफरेंट मेजर ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन डे बाय डे चैलेंजेस फेस होते हैं, उसके हवाले से उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जाता है। उसकी बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है, आपको उस लेवल पे आपको डिफरेंट आपका मेजर फोकस होता है। प्लस स्टूडेंट को इतना एम्पावर करते हैं कि वो किसी भी अच्छी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी बैंक्स को अपना कैरियर को ज्वाइन कर सकता है। वन ऑफ द फाइनेंस प्रोग्राम बीएस कंप्यूटर साइंस, जो कि हमारा 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें मेजरली आपको 6 डिफरेंट इलेक्टिव्स और 4 जनरल इलेक्टिव्स पे बेसिस पे आपको डिग्री फराहम की जाती है। इंक्लूडिंग दैट वी हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हमारी मेजर 8 कंप्यूटिंग लैब्स हैं, जिसमें 3 हमारी जो है हार्डवेयर टीचिंग लैब्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास 4 रिसर्च लैब्स अवेलेबल हैं, जिसमें फोकस आपको स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको करिकुलम पढ़ाया जाता है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पे दिलवाई जाती है इन डिफरेंट रिसर्च लैब्स, कंप्यूटिंग लैब्स, हार्डवेयर टेक्नीशियन लैब। We also provide education in the computer science, जिसमें हम लोग उन स्टूडेंट्स को उनकी प्रॉपर प्रोफेशनल, एथिकल, लीगल, सिक्योरिटी और सोशल इश्यूज पे ज्यादा हाईलाइट करते हैं, ताकि जब इंडस्ट्री में स्टूडेंट जाए तो उसको वो इनफ नॉलेज हो और वो इस नॉलेज के साथ अपने आप को इतना एम्पावर करने के बाद अगर किसी भी आईटी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहे तो वो उसको इंडस्ट्री में किसी किस्म की कोई मुश्किलात सामना ना करना पड़े। दिस इज द फैकल्टी एकेडमी, जो कि हमारे आईबी में जितने हमारे स्टूडेंट्स आते हैं इनको टीच करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स। वी डू हैव अ सेपरेट एक्सचेंज प्रोग्राम एज वेल, जिसमें हम लोग स्टूडेंट को एम्पावर करते हैं कि वो अगर उनको यूनिवर्सिटीज में किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिलता है तो वो डेफिनेटली हम उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो विद दैट विजन, जो आप अभी मैप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पे, इसमें जो रिप्रेजेंटेशन जो इसमें यूनिवर्सिटीज के नाम मेंशन किए गए, इसका जो लिंक है स्टूडेंट के साथ इस तरह से है कि ये सारी यूनिवर्सिटीज में आईबीए के इंटरनेशनल लिंकेजेस के कलेक्शन है, प्लस स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटीज का पार्ट बन चुके हैं, कुछ अभी अपनी एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं, कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम में गए हुए हैं। तो कहने का मकसद ये कि एट आईबीए वी हैव डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स। अगर कोई चाहता है कि हमें आगे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के भी हमें अपनी एक्सपोजर लेना है, तो डेफिनेटली वी हैव वेरियस प्रोग्राम्स अवेलेबल एट द मोमेंट। ये डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज का पार्ट रह चुके हैं, जिसमें स्टूडेंट अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। एडमिशन टू आईबी में मेजर फोकस हमारा जो आईबीए ऑन मेरिट आपको एडमिशन प्रोवाइड करते हैं वो 3 मेजर सेक्टर्स हैं, जिसमें आपका पहला वो स्ट्रक्चर है जिसमें आप स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी एकीयू बोर्ड का स्टूडेंट हो, चाहे वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंड या करिकुलम यूनिवर्सिटी का पार्ट हो, या किसी भी इंटरमीडिएट सेकेंडरी बोर्ड का पार्ट हो,
उसकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, अगर स्टूडेंट का एडमिशन बीबीए प्रोग्राम में अगर होता है तो हम उस स्टूडेंट की जो मिनिमम परसेंटेज जो एक मांगते हैं वो 65 इन एनी डिसिप्लिन, राइट। अगर स्टूडेंट का बीएस प्रोग्राम जो मैंने भी आपको नाम बताया 6 डिफरेंट प्रोग्राम्स, अगर उसमें एडमिशन सिक्योर होता है तो आईबीए में इंटरमीडिएट बैकग्राउंड की जो मिनिमम परसेंटेज है वो 60 रिक्वायर्ड होती है। We also accept A-level and A-level background students में हमारी जो, अगर आप बीबीए प्रोग्राम की अगर आप बात करते हैं तो उसमें मिनिमम क्राइटेरिया हमारा है जिसमें हम 2 Bs and 1 C रिक्वायर्ड होता है इन 3 principal subject फॉर द बीबीए प्रोग्राम। और अगर आप बीएस प्रोग्राम की बात करते हैं जिसमें 2 Cs and 1 B रिक्वायर्ड होता है इन 3 principal subject। अगर आप पर्टिकुलरली बीएस मैथमेटिक्स को परस्यू करना चाहते हैं तो ये मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए मैथमेटिक्स, ताकि इन फॉर आपके जो भी ए लेवल पे आप अपना एजुकेशन कर रहे हैं। वी आल्सो एक्सेप्ट द अमेरिकन स्कूल डिप्लोमा जिसमें हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 80%। on the basis of SAT we also give admission to the particular students। हमारा certain criteria है, certain threshold है। ये जो आप क्राइटेरिया देख रहे हैं, ये जो थ्रेशोल्ड्स देख रहे हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के, ये बेसिकली लास्ट ईयर के क्राइटेरिया है जिसमें आईबीए ने अपना एडमिशन डिफरेंट लेवल पे, यानी कि अगर आप कोई सैट स्कोर इस किसी भी प्रोग्राम के हवाले से अगर आप स्कोर करते हैं तो आईबीए के एडमिशन डिपार्टमेंट को आप ईमेल करते हैं विद द प्रूफ ऑफ योर सैट स्कोर, राइट। और उसकी बेसिस पे आपका एडमिशन डिपार्टमेंट कंफर्म करता है कि यस यू आर एलिजिबल। तो अगर आपका स्कोर उस सर्टेन थ्रेशोल्ड से अबव होता है तो आपको आईबीए कहता है कि यस यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जाम, बट योर एग्जाम विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो उसमें हम नॉर्मल एग्जेम्पशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हमारा सेट स्कोर एक सर्टेन लेवल तक मीट नहीं करते तो हम तो उनको इंटरव्यू प्रोसेस से भी गुजारते हैं। ये सारे प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शंस हैं जो कि हमने आपको आज शेयर की। बेसिक अगर आप आईबीए में बात करते हैं तो हम इसमें ये अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। वी डू हैव डिफरेंट सोसाइटीज एंड स्टूडेंट काउंसिल्स अवेलेबल जिसमें स्टूडेंट को एम्पावर किया जाता है कि वो डिफरेंट सोसाइटीज को ज्वाइन करें और अकॉर्डिंग टू देयर पैशन अपनी डिग्री प्रोग्राम को परस्यू करें। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स की तरफ से। फाइनेंशियल असिस्टेंस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। अगर आप आईबीए की अगर आप बात करते हैं तो कोई ऐसा एडमिशन डिक्लाइन आज तक नहीं हुआ जिसमें हम ये कहें कि स्टूडेंट के पास एडमिशन है लेकिन स्टूडेंट के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हम उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो हमारे फाइनेंशियल एड का पार्ट बने। अलॉन्ग विद दैट वी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अबव 4,000 plus students for the academic year 2016 to 21। Every year 35% of the students receive financial assistance every year। इसका इस साल भी अगर हम इंटेक की बात करें तो ये हमारा जो इंटेक है ये काफी ज्यादा बढ़ रहा है हर साल। तो based on that, move on to the next slide। We can approachable in the different ये contact details हमारी available है। हमारा Facebook पेज है, हमारा LinkedIn, Twitter account, Instagram, YouTube, website। I connect you with that point कि अगर आपके पास कोई भी क्यूरी है related to IB कराची और आप कोई इस क्यूरी को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो we are available at the Dawn Education Expo जो कि PC होटल में aligned है by today 27 January and 28 January at the PC होटल। अगर कोई स्टूडेंट कराची बेस्ड है तो डेफिनेटली वहाँ पे जरूर विजिट करें at the PC होटल। वहाँ हमारे सेपरेट एग्जीबिशन स्टॉल अवेलेबल है जहाँ पे हमारे आईबी के डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग अवेलेबल हैं, काउंसलर्स अवेलेबल है। अगर आप कोई क्यूरी हो तो आप वहां पे जाके भी हमसे बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा जो असल मोटिव है जिसमें हम आपको अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स को भी देना चाह रहे हैं कि ये तो आपको बता दिया कि आईबी कराची में ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं इन डिफरेंट शेप ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके पास टैलेंट होता है, जिनके पास अच्छे मार्क्स अवेलेबल है लेकिन उनको थोड़ी सी अवेयरनेस बिल्ड करनी है, उनको थोड़ा सा एम्पावर करना है, उनको बताना है कि आपका ये राइट ट्रैक है, आपने इस तरीके से अपने आप को ऐड करना है। अगर आप किसी बिजनेस स्कूल की अगर बात करते हैं तो आईबीए का एक मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम है विद द नेम ऑफ आईबीए एसआर ट्रस्ट नेशनल टैलेंट प्रोग्राम, जिसमें हम लोग
पर्टिकुलरली आपकी जो स्टूडेंट्स होते हैं जो पाकिस्तान के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं। अगर हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो बेसिकली प्रोग्राम ये हमारे फुली फंडेड प्रोग्राम है। एक एहसान ट्रस्ट एक सब्सिडरी है मिजान बैंक की, और एक सब्सिडरी में एहसान ट्रस्ट उन स्टूडेंट्स को एम्पावर करता है ऑल ओवर पाकिस्तान, उस प्लेटफॉर्म का के साथ में सपोर्ट करता है, प्लस उनको ट्रेनिंग के बाद उनको आईबी के एप्टीट्यूड टेस्ट पर बिठाने के बाद उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो प्रोग्राम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका जो मेजर फोकस है वो यही कि हम लोग मेरिट का नीड बेसिस पे वो स्टूडेंट्स को इंडक्ट करते हैं, उनकी ग्रूमिंग पे फोकस करते हैं, और प्लस स्टूडेंट को इतना इंश्योर कराते हैं कि जब वो आईबी के एडमिशन प्रोसेस का पार्ट बने तो वो आईबी के एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई कर सके। तो दिस इज वी आर पोर्ट्रेइंग दिस इमेज फॉर द लास्ट कपल ऑफ 19 years। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, फाइनेंशियली डिजर्विंग स्टूडेंट जो जिसका ताल्लुक किसी भी सूबे से है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है, चाहे वो फाफलान एरिया से बिलोंग करता हो, चाहे वो अर्बन कहीं से भी बिलोंग करने वाला स्टूडेंट है, लेकिन अगर वो किसी भी बोर्ड से रजिस्टर्ड है, मैं क्लियर कर देता हूँ, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी बोर्ड से हो, या एकीयू बोर्ड से हो, या जियाउद्दीन बोर्ड से हो, या करिकुलम बोर्ड से हो, या फेडरल बोर्ड से हो, राइट, तो वो हमारे इस फ्लैगशिप प्रोग्राम का पार्ट बन सकता है। एट द मोमेंट जो स्टूडेंट जिसने लास्ट ईयर 23 के अंदर अपना फर्स्ट ईयर पर अपना एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, अपने एग्जाम्स दे दिए हैं, नाउ इज वेटिंग फॉर द फाइनल फॉर द रिजल्ट, और उसका जो मिनिमम परसेंटेज है वो 70 डिक्लेयर हुई है फ्रॉम, राइट, तो वो आई फ्लैगशिप प्रोग्राम का पार्ट बन सकता है। Particularly we are also accepting those students as well जिन्होंने अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया है और लास्ट ईयर 23 के अंदर उनकी 70 या उससे ज्यादा परसेंटेज है, तो वो भी हमारे इस प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं। वी हैव टू डिफरेंट फेजेस इसमें हम लोग एक तो फर्स्ट फेज में आप लोग ओरिएंटेशन की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, फिर सेकंड फेज पे हम लोग आपको डिग्री प्रोग्राम की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट फेज में हमारा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसमें हम लोग पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव थ्रू अ कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें हमारा मेजर जो प्रोसेस का पार्ट है वो असेसमेंट टेस्ट है, और उसके बाद है फाइनल इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, और उसमें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो मेरिट कम नीड है। उसके बाद स्टूडेंट जब ये इस क्राइटेरिया के बाद ये सारे प्रोसेस के पार्ट बनने के बाद अगर उसकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है तो देन वी इनवाइट देम टू द 2 months ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसपे इनका जो मेजर फोकस है आपकी ग्रूमिंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, कि इसमें आपको किस तरीके से आपको आईबी के लिए प्रिपरेशन प्रोवाइड करनी है। इसकी मेन फीचर ऑफ द ओरिएंटेशन प्रोग्राम में थोड़ा सा हाईलाइट देख लेते हैं कि बेसिकली वी प्रोवाइड 8 weeks रिग्रेस ट्रेनिंग। ठीक है, हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बच्चों स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं ऑन द एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आईबीए के जो बीपीए बेस्ड प्रोग्राम के जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं इन राउंड 1 एंड राउंड 2, जो कि सैट फॉर्मेट पे होते हैं। Along with that, we also provide mentoring and counseling to the counseling session as well. Along with that, हम लोग इसमें मॉक एग्जाम और मॉक पैनल इंटरव्यूज भी अलाइन करते हैं विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट, कि हम लोग उन स्टूडेंट को थोड़ा सा एम्पावर करते हैं कि वो बेसिकली अपने प्रैक्टिस करने के बाद जब एग्जाम में बैठे तो उनको पता हो कि किस तरीके से अपनी टाइम मैनेजमेंट को स्किल्स को अपने इंश्योर करना है। वी ऑल्सो अरेंज गेस्ट स्पीकर सेशन एज वेल, जिसमें हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्री से लोग आते हैं, अपने आप को थोड़ा सा अपनी जो हिस्ट्री होती है थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। अदर फैसिलिटीज की हम बात कर लेते हैं, जिसमें हम लोग टीचिंग मटेरियल, हॉस्टल अकोमोडेशन, मेस फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मंथली स्टाइपेंड, एवरेज के बेसिस पे ट्रेन का, ये बस का फेयर हम भी प्रोवाइड करते हैं। अलॉन्ग विद दैट वी आल्सो अरेंज वर्कशॉप फॉर द बेस्ड ऑन द सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एज वेल। अब बात कर लेते हैं कि आपने एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट करनी है। तो एप्लीकेशन सबमिट करने के बहुत आसान इसके स्टेप्स हैं। हमने अभी रिसेंटली जनवरी 14 को इन द लीडिंग न्यूज़ पेपर पाकिस्तान, जिसमें हमने अपना न्यूज़पेपर में एड पब्लिश किया था, और वही एड को आप हमारे वेबसाइट पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वी हैव अ सेपरेट वेबसाइट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जिसका नाम है talenthunt.iba.edu.pk।
इसको थोड़ा सा प्रोसेस समझ लेते हैं कि आपने किस तरीके से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेस करना है। कि आपने पहले स्टेप 1 में अपने एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक को चूज करना है, उसके बाद फिर आपने इस पोर्टल पर जाना है। आपने इसको चूज करने के बाद अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल आउट करना है। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल आउट करने के बाद स्टूडेंट बहुत सारे ये अज्यूम करते हैं कि स्टूडेंट ने जो रजिस्ट्रेशन डिटेल सबमिट कर दी तो वो अज्यूम करते हैं कि उन्होंने फॉर्म फिल आउट कर दिया है, जो कि ऐसा नहीं होता है। तो मैं यहाँ क्लियरली कहूंगा कि रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेज जिसमें स्टूडेंट जो है अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल सबमिट करता है, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और असेसमेंट टेस्ट सेंटर। असेसमेंट टेस्ट सेंटर पूरे पाकिस्तान में हम इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। वो टेस्ट सेंटर गिलगित बल्तिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, हैदराबाद, सखर, उसके अलावा चित्राल में भी हम लोग सेंटर स्टैब्लिश करते हैं, स्कर्दू में भी हम लोग सेंटर स्टैब्लिश करते हैं और गवादर में भी हमारा टेस्ट सेंटर स्टैब्लिश किया जाता है। तो आफ्टर सबमिटिंग द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स नाउ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे, जिसमें जब आप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सबमिट कर देंगे तो आपके पास आपके ईमेल एड्रेस पे या आपके मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस आएगा और एक ईमेल एड्रेस पे एक आपके पास एक ईमेल आएगी आईडी की तरफ से, जिसमें लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड होगा और एक लिंक होगा। उस लिंक के थ्रू आपने वेबसाइट को एक्सेस करना है और इसमें फर्दर जो डिटेल्स स्टेप नंबर 6 में लिखी हुई है, इसमें पर्सनल डिटेल्स है, एजुकेशन बैकग्राउंड है, उसके अलावा आपका जो इनकम रिलेटेड है, फैमिली इंफॉर्मेशन है, मोर इंफॉर्मेशन है, प्रीव्यू एंड द लास्ट वन इज अंडरटेकिंग फॉर्म। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने फिल आउट करनी है और इंश्योर करना है कि आपने अपने फॉर्म को कंप्लीट करना है। अलॉन्ग विद दैट जब आप अपने फाइनल स्टेज पे होते हैं, जब अपनी फॉर्म को फिल आउट कर लेते हैं, तो आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल रिसीव होगी जिसमें आपको कहा जाएगा यस यू हैव वी हैव रिसीव योर कंफर्मेशन, यू हैव रिसीव we have received your application. The application number is so and so, and your ID is this. और उसके बाद इंश्योर ये आपसे करवाया जाता है, ये कहा जाता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट जरूर सबमिट करने हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और स्टूडेंट को ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट के पास जो जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वो इसको करेक्टली तौर पे बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म पहले अपने फॉर्म, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को डेस्कटॉप पे या अपने मोबाइल पे एक सेपरेट फोल्डर बना के प्लेस कर दें। और जब आप सबमिट करें डॉक्यूमेंट को तो ये इंश्योर करेंगे राइट डॉक्यूमेंट को राइट प्लेस पे आपने अपलोड करना है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट डे मार्कशीट की जगह पे मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड कर रहा है तो वो उसको थोड़ा सा ये चीज इंश्योर करनी होगी अपने एंड पे कि वो डॉक्यूमेंट की राइट प्लेसमेंट पे भी फोकस करे। अलॉन्ग विद दैट हम लोग उसमें एप्लीकेंट का सीएनआईसी रिक्वायर्ड होता है। बेफॉर्म का सीएनआईसी नहीं है तो बेफॉर्म उसमें अटैच करते हैं, फादर का सीएनआईसी या गार्जियन का सीएनआईसी। सीएनआईसी अपलोड करने में बहुत से स्टूडेंट डिफिकल्टी कर रहे हैं आजकल। वो ये हो रहा है कि फ्रंट से आप लोग तस्वीर लेते हो फ्रंट की सीएनआईसी की, ठीक है, और उसको अपलोड कर देते हो। लेकिन करेक्ट ये है कि आप फोटोकॉपी पे जाके या तो आप उसको इसका सीएनआईसी का फ्रंट साइड पे आप उसकी फोटोकॉपी निकलवा के वो पिक्चर के तौर पे आप अटैच कर दो, या आप उसकी वर्ड पे जाके या पेंट पे जाके आप उसको सीएनआईसी कॉपी को दोनों एक साथ रखिए, फिर उसको एक डॉक्यूमेंट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है। एज फार सैलरी स्लिप, इनकम सर्टिफिकेट इज रिक्वायरमेंट, तो इसका मैं आपको क्लियरली वर्जन ये दे देता हूँ कि इनकम सर्टिफिकेट इज इम्पोर्टेंट, जिसमें हम लोग अगर कोई स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर मेरे पास मेरे वाले साहब जो है या मेरी वालिदा जो है या मेरे गार्जियन जो है वो सैलरी होल्डर नहीं है, वो इनकम का जो पार्ट है वो थ्रू एग्रीकल्चर से अवेल कर रहे हैं, तो उसमें हम स्टूडेंट को ये इंश्योर करते हैं कि अगर आपके पास ऐसी कोई रिसिप्ट मौजूद है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसमें आपको गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया हो या जो आपकी इनकम को डिक्लेयर कर सके कि यस दिस इनकम डायरेक्टली रिलेट फ्रॉम ईयर एग्रीकल्चर, तो उसमें जितना पार्ट आपने कंट्रीब्यूट किया जाता है आपकी फैमिली की अर्निंग्स के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए, तो उसमें आप उसको मेंशन करते हैं। या इन अदर वर्ड्स अगर आप डेली वेज पे काम कर रहे हैं वाले साहब आपके, तो आप उसको एफिडेविट या इनकम स्टेटमेंट या आप उसको स्टैम्प पेपर की तौर पे आप उसको यूज कर सकते हैं। वहां पे आपने डिक्लेरेशन दिलवानी होगी, बताना होगा कि यस आपके फादर जो है वो इस कम्युनिटी का पार्ट है, यहाँ पे वो काम करते हैं एज डेली वेजेस या एज
किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या आप एज आपकी जो इनकम फ्रॉम रेंट आपकी जो जनरेट हो रही है थ्रू एसेट्स के तौर पे हो रही है, तो आप उसको डिक्लेयर करते हो, राइट। सैलरी स्लिप का मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई फैमिली जो है वो उनके फादर जो है गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो पे स्लिप लगती है, ठीक है। आप अपनी लास्ट सैलरी स्लिप की जो भी लास्ट स्लिप होती है वो आप उसमें अटैच करते हो, या अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आप अपना सैलरी स्टेटमेंट आप वहां पे इंश्योर कराते हैं। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैं मेरे फादर साहब तो बिजनेस करते हैं और इस सर्टेन इनकम जो भी जनरेट होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसमें जो आपका मेजर शेयर है वो इतना बनता है, तो उसकी इसकी गाइडलाइन इस तरह से है कि अगर कोई स्टूडेंट कहे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस है, तो अगर उसका वेल्थ स्टेटमेंट बना हुआ है या इनकम रिटर्न फाइल हुआ है अपने फादर के से पूछ लीजिएगा तो वो इनकम डॉक्यूमेंट का पार्ट अपलोड कर दे। एक तो ये बात, दूसरा अगर वो नहीं है तो फिर आप उसको एफिडेविट स्टैम्प पेपर के तौर पे भी आप उसको इंश्योर करवा सकते हैं। लास्टली बर्थ सर्टिफिकेट इन प्लेस ऑफ डोमिसाइल, अगर डोमिसाइल अवेलेबल है तो आप डोमिसाइल अपलोड कर दें, अगर डोमिसाइल नहीं है तो फादर का डोमिसाइल लगा दीजिए, अगर फादर का डोमिसाइल भी नहीं बना हुआ तो फिर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच कीजिएगा। ये प्लीज मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि प्लीज अगर कोई स्टूडेंट एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहा है और इंश्योर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं अटैच कर रहा है तो ये चीज नोट कर लीजिएगा कि वी विल नॉट प्रोसेस द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। तो हम ये स्टूडेंट्स को बार बार मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कि वंस अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है तो इसको आप प्लीज अपने एंड पे इंश्योर करवाइएगा कि आपने डॉक्यूमेंट भी करेक्टली भेजे हो, ताकि हमारी जो टीम है उसको प्रॉपर तरीके से वैलिडेट कर सके। ये आप थोड़ा सा इसका पोर्टल है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस का, जिसका भी मैंने आपको वेबसाइट का एड्रेस बताया, that is starenhunt.iba.edu.pk। उसके बाद हमारा जो मैनुअल फॉर्म भी अवेलेबल है जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसका जो लेआउट है वो कुछ इस तरीके से है। ये 2 पेजेस पे फॉर्म एग्जिस्ट करता है। इसमें मेजरली आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन, आपकी एजुकेशन, आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, आपके फैमिली की इंफॉर्मेशन के बाद अकोमोडेशन स्टेटस है, इनकम है, उसके बाद रेफरेंसेस हैं। अब बात करते हैं कि आपने आईबीए के एनटीएचपी टेस्ट में आपने आपको कैसे प्रिपेयर करना है, वो कौन से आपने पॉइंट्स को फोकस करना है। तो बिफोर मूविंग ऑन दिस पॉइंट प्लीज नोट डाउन कि आईबीए टैलेंट डिपार्टमेंट एक ऑनलाइन सेशन अरेंज करने वाला है इन कपल ऑफ डेज के अंदर, जिसमें हम लोग डॉक्टर जुनैद आलम खान और हमारे दूसरे फैकल्टी मेंबर आपको बताएंगे कि आपने आईबीए के एनटीएचपी टेस्ट में किस तरीके से टॉपिक्स को फोकस करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके आप हमारी वेबसाइट पे, हमारे सोशल मीडिया पेज पे हमसे कनेक्टेड रहिएगा ताकि हम आपको उस पर अपडेट कर सके। मेजरली आपकी जो टॉपिक्स कवर होते हैं इस एनटीएचपी के असेसमेंट टेस्ट में, जो उस पर हम इंग्लिश और मैथमेटिक्स बेस्ड टॉपिक्स पे हम आपके टेस्ट अरेंज करते हैं, जो कि प्योरली आपका मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसपे वो टेस्ट डिजाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एडमिशन डिपार्टमेंट। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो जिसमें मेजर क्राइटेरिया की बेस पे दैट इज मेरिट कम नीड, उसकी बुनियाद पे हम आपको एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिसको हमको कहते हैं प्री स्क्रीनिंग टेस्ट या एनटीएचपी असेसमेंट टेस्ट, जो कि मेजरली एमसीक्यू बेस्ड होता है, ठीक है। उसके सैंपल पेपर्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होता। अगर कोई कैंडिडेट सक्सेसफुली क्लियर कर लेता है हमारे टेस्ट को तो देन वी इनवाइट दैट स्टूडेंट फॉर द फाइनल इंटरव्यू। फाइनल इंटरव्यू बेसिकली हम लोग टेलीफोन के थ्रू उसको अरेंज कर रहे होते हैं, considering the current situation of the student. We also uploaded the different resource material on our website. आप उसको भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मेजर सेंटर्स हैं जहाँ पे हम लोग अपने टेस्ट को अरेंज करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गवादर, हैदराबाद, मुल्तान, पेशावर, क्वेटा, स्कर्दू, सखर, गिलगित, मुजफ्फराबाद एंड चित्राल एज वेल। सबमिशन डेट में जो मेजरली डेट्स अवेलेबल हैं उसमें थोड़ा सा मैं आपको अपडेट करूंगी ड्यू टू इसमें हमने थोड़ी सी चेंजेस की थी। अभी हमने जो रिसेंटली जो अपना न्यूज़पेपर जो हमने अपडेट किया है उसमें हमने जो लास्ट डेट हमने डिक्लेयर की है वो है 25 फरवरी।
तो प्लीज नोट डाउन कि हमारी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है वो February 25 है। एनटीएचपी के जो टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे वो बजाय 10 मार्च के वो हम करेंगे 31 मार्च को। तो उसकी जो अनाउंसमेंट है, उसकी जो डिटेल्स है वेबसाइट पे कुछ ही एक दिन के बाद इंशाल्लाह इसको अपलोड कर देंगे। एज फार एज ट्रेनिंग प्रोग्राम इज कंसर्न, उसमें हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 3rd जून से हम उसको प्लान कर रहे हैं इनिशिएट करने का। अब बात करते हैं कि आपने स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। अगर आप आईबीए के एनटीएचपी टेस्ट को पास कर लेते हो, आईबीए की ट्रेनिंग का पार्ट कंप्लीट कर लेते हो। रिजवान साहब, यस ये यस। ये आपका स्क्रीन नजर नहीं आ रहा, ये वो पुराना जो स्क्रीन है वो इंटेक्ट है, तो आप काइंडली जरा चेक कर ले अपनी। हाँ, ये वो एग्जैक्टली। सर क्लियर है सर? जी जी, अभी क्लियर है जी, बिल्कुल। क्योंकि ये जो ये है ना, कहाँ पे? ये हाँ, आपका वो जो पुराना प्रेजेंटेशन था वो स्क्रीन नजर आ रहा था, सो ये नजर नहीं आ रहा था। अभी अच्छा अभी मुझे अभी एक अभी बात, जी। मुझे बताया कि जो मैंने प्रीवियसली जो डिस्कशंस कर रहा था उस पे हमारी स्लाइड विजिबल हो रही थी नहीं प्रीवियस नहीं, एंडी? आप नहीं, वो फर्स्ट वर्जन का हो रहा था, ये जो टैलेंट हंट प्रोग्राम है ये नहीं हो रहा था। मैं दोबारा रिपीट करूं उसको? नहीं, जस्ट जस्ट गो थ्रू इट इतना, क्योंकि ठीक बेसिक है, आइडिया मैं तो गो थ्रू मिल कर चुका लूँ। है। जस्ट क्विकली आप उसको वो कर ले। ये हमारा बेसिकली टैलेंट प्रोग्राम है। ये बेसिकली हमने एनटीएचपी के बारे में डिक्लेयर किया, उसके बाद मेजर क्राइटेरिया पे हमने फोकस किया कि इस पे कितने टारगेट करते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जिन्होंने अपने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर कर लिया है और अब इस वक्त जो है सेकेंड ईयर के एग्जाम्स की परस्यू कर रहे हैं। उसके बाद दो हमारे डिफरेंट फेसेस हैं प्रोग्राम, इसमें ओरिएंटेशन फेज है एंड द डिग्री प्रोग्राम स्कॉलरशिप। ये इसकी मेजर डिटेल्स हैं जिसमें हम लोगों ने असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू की बेसिस पे हम स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करते हैं फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये हमारे मेन फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम है जिसमें हम लोग मेजरली आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें जो फैसिलिटीज दी जाती हैं इसमें टीचिंग मटेरियल, हॉस्टल अकोमोडेशन, मेस फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मंथली स्टाइपेंड, एवरेज ट्रेन बस ट्रेन बस का फेयर भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं वन साइड का। अलॉन्ग विद दैट ये हमारा मेन प्रोसेस है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से सबमिट करना है। वी हैव अ सेपरेट वेबसाइट दैट इज कॉल्ड talenthunt.iba.edu.pk। इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। स्टेप 1 में आपने वेबसाइट एक्सेस की, सेकंड में आपने इस प्रोग्राम को चूज किया पोर्टल पे जाके, थर्ड में आपने अपनी रजिस्ट्रेशन को आपने इंश्योर किया, इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, अगर ईमेल एड्रेस नहीं है तो ईमेल एड्रेस बना लीजिए अपना, असेसमेंट टेस्ट सेंटर चूज कीजिए और डिटेल्स को सबमिट कर दीजिए। जब वो डिटेल सबमिट कर देंगे तो ये आपके पास एक सेपरेट ईमेल आईडी पे आपको या तो ईमेल आएगी जो आपने ईमेल अगर दी होगी, या आपको आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस आएगा जिसपे आपको एक आईडी पासवर्ड मिलेगा और एक लिंक मिलेगा वेबसाइट का। थ्रू दैट लिंक आपने इसको लॉग इन करना है, उस अपने आईडी पासवर्ड को एंटर करने के बाद फिर आपने उस डिटेल्स को आपने फिल आउट करना है। डॉक्यूमेंट सबमिशन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, जिसमें हम स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि आप अपनी डॉक्यूमेंट जब आप अपनी एप्लीकेशन को अपलोड कर दें तो उसके बाद ये इंश्योर जरूर कीजिएगा कि डॉक्यूमेंट आपने ये नेसेसरी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैट्रिक की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट मैंडेटरी होती है और सेकेंड ईयर की मार्कशीट अगर सेकेंड ईयर दे दिया है तो वो अपलोड करता है। एप्लीकेंट सीएनआईसी बे फॉर्म, अगर सीएनआईसी नहीं है तो बे फॉर्म लगा दीजिए, फादर का सीएनआईसी नहीं है तो गार्जियन का सीएनआईसी लगा दीजिए, सैलरी स्लिप नहीं है तो इनकम सर्टिफिकेट लगा लीजिए। इनकम सर्टिफिकेट में जो हायरार्की है वो ये कि अगर आपके पास डेली वेजेस पे कोई फादर काम करते हैं या एग्रीकल्चर के थ्रू इनकम जनरेट होती है या कोई बिजनेस करते हैं उससे थ्रू आपकी इनकम जनरेट होती है तो आप या तो एक इनकम स्टेटमेंट दे दें या आप एफिडेविट दे दें। एफिडेविट का मतलब ये होता है कि आप स्टैम्प पेपर किसी भी नोटरी पब्लिक के पास जाके उसको वहां पे इनकम डिक्लेयर करवाते हैं, उसको नोटरी पब्लिक जो भी होता है ऑथराइज पर्सन उसको अटेस्ट करता है और फिर वो एज ए डॉक्यूमेंट आप हमसे शेयर करते हैं। अलॉन्ग विद दैट वी आल्सो एक्सेप्ट द डोमिसाइल स्टूडेंट जो कि हमें डोमिसाइल शेयर करते हैं। अगर डोमिसाइल नहीं है तो हम फिर उनको रिकमेंड करते हैं कि फादर का डोमिसाइल इस पर अपलोड कर दें। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर स्टूडेंट को कहा जाता है कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट आप उसमें अटैच कर दें।
मेक इट श्योर कि डॉक्यूमेंट आपने सारे अटैच करने हैं, कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर मिस होता है तो फिर हम उसमें उस स्टूडेंट को वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर मेरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ फर्स्ट ईयर का, मैंने फर्स्ट ईयर एग्जाम लास्ट ईयर पास किया था, या मैंने सेकेंड ईयर एग्जाम मैंने लास्ट ईयर अपेयर हुआ था लेकिन अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, तो देन हम उसको यही बार बार कह रहे हैं कि आप 25 फेब तक आप वेट कर लें, डॉक्यूमेंट्स को आप अपने पास इंश्योर कर लें, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उसको अपलोड कर दें और उस रिजल्ट का वेट करें। अगर वो विद इन टाइमलाइन अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो देन यू आर एलिजिबल कि आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड कर लो। अगर नहीं होता तो फिर वेट करें, एनटीएचपी डिपार्टमेंट आपको उस हवाले से फिर आपको गाइड करेगा कि आपने फर्दर अब आपने क्या करना है। ठीक है, ये एक लेआउट है हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन का, इसमें हम मैनुअल एप्लीकेशन फॉर्म भी एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो असेसमेंट टेस्ट है उसके मेजर टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जिसमें इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ डिफरेंट टॉपिक्स ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे एक बात जरूर बोलूंगा कि आप स्टूडेंट, एक हमारा ऑनलाइन सेशन अरेंज होने वाला है जो कि फेसबुक पेज पे भी जाएगा, वेबसाइट लाइव जाएगा, और उसमें फोकस किया जाएगा कि आपने अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है एनटीएचपी असेसमेंट टेस्ट के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो मैथमेटिक्स हो। ये मेन क्राइटेरिया है असेसमेंट टेस्ट का, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते और एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है पूरे पाकिस्तान में। ये हमारे मेजर सेंटर्स है जहां पे अपने सेंटर स्टैब्लिश करते हैं, along with the चित्राल as well। ये मेजर टाइमलाइंस है हमारी, इसमें हमारी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 25 फरवरी है। मैं यहाँ पे इंश्योर करेक्ट कर देता हूँ कि ये 10 फरवरी हमने अभी रिसेंटली अपडेट किया है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में, और वो अब हमारी 25 फेब लास्ट डेट है। एज फार एज टैलेंट हंट और ये टेस्ट इज कंसर्न, तो हम लोग अभी जो टेस्ट कंडक्ट करेंगे वो 31 ऑफ मार्च पे टेस्ट अपना कंडक्ट करेंगे इन ऑल ओवर पाकिस्तान। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की, यानी कि अब आप उसका प्रोसेस समझें, यानी कि आपने पहले एप्लीकेशन सबमिट की, सबमिट करने के बाद आपने टेस्ट के लिए आप शॉर्ट टेस्ट हुए, आप टेस्ट में बैठे, टेस्ट पास कर लिया आईबी का, प्लस आप एलिजिबल हो गए कि आपको आईबीए ने एडमिशन दे दिया इन एनी प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड बीबीए या बीएस प्रोग्राम। नेक्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगर कोई स्टूडेंट मुझे डिक्लेयर करता है और मैं कहता है कि सर मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है मेरी फैमिली के पास, तो इसके लिए यहाँ पे ये एज मौजूद है, ये अपॉर्चुनिटी है। एवरी स्टूडेंट चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता हो, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो हमारे फाइनेंशियल एड का पार्ट बन सकता है। तो उसमें कंसिडरेशन जो होती है वो अप टू 100%, और चाहे वो कर्ज हंसता हो या इंटरेस्ट फ्री लोन हो या दूसरी रोल मॉडल्स के थ्रू भी हम उसमें स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इसका तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट इस तरह से, यानी कि जब आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है आईबीए का, जो एडमिशन डिपार्टमेंट डिक्लेयर करता है थ्रू देयर वेबसाइट, उसमें आपके जब आप लास्ट नोटिफिकेशन में जाते हैं अपने रिजल्ट के हवाले से, तो वहां पे एक डिस्कशन, एक स्टेटमेंट लिखी होती है, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस मे प्लीज फॉलो द बिलो प्रोसीजर। तो उसमें स्टूडेंट को ये कहा जाता है कि आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना होता है, जो कि एक लेंथी प्रोसेस होता है, और उसमें स्टूडेंट जब भी अपनी चीजों को डिक्लेयर कर देता है तो एक हमारी सेपरेट फाइनेंशियल असिस्टेंस कमेटी है जो कि उसके डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करती है। वैलिडेट करने के बाद हमें किसी लेवल पे अगर लगता है कि स्टूडेंट की वेरिफिकेशन वगैरह भी रिक्वायर्ड होती है या हमें कॉल की जरूरत पड़ती है, तो डेफिनेटली वी द डिपार्टमेंट विल अप्रोच दैट स्टूडेंट एंड क्लैरिफाई दैट स्टेटमेंट एज वेल। अगर फिर कमेटी असेसमेंट के बाद अगर डिक्लेयर कर देती है कि यस यू आर एलिजिबल टू अवेल दैट 100% स्कॉलरशिप, तो फिर हम उसमें एनटीएचपी प्रोसेस के थ्रू उसकी तमाम चीजें कवर करते हैं, जिसमें हमारे पास आपकी ट्यूशन फीस, आपके अदर रिकरिंग चार्जेस, उसके अलावा एडमिशन चार्जेस, बुक्स एंड मटेरियल, हॉस्टल अकोमोडेशन, मेस फैसिलिटी एंड द मंथली स्टाइपेंड एज वेल। टिल 4 इयर्स तक हम स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो कहने का मकसद ये कि एनटीएचपी इज अ वेरी फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसमें स्टूडेंट को ये इंश्योर करवाया जाता है कि वंस गेट एडमिशन इन एनी प्रोग्राम, देन द टैलेंट प्रोग्राम विल
will provide scholarship depending on the decision, यानी कि जो decision हमें financial aid committee की तरफ से मिलता है तो हम उसके बाद फिर student को further ये opportunity provide करते हैं. We are running this program since 2004. तो अगर आप demographics की बात करें talent program की तो हमारे पास various students हैं जो पाकिस्तान से different शहरों से ताल्लुक रखते हैं. थोड़ा सा इसकी history को देख लेते हैं. तो ये हमारी मेजर स्टैटिस्टिक्स है जिसमें हम लोग 2004 से लेकर 2023 तक स्टूडेंट्स को इंडक्ट कर चुके हैं. इन टोटल अगर आप बात करते हैं तो हमने तकरीबन 42,000 प्लस स्टूडेंट्स को स्टूडेंट इसका पार्ट बने हैं, रजिस्टर किया है. तकरीबन 26,000 प्लस स्टूडेंट जो है उस इनिशियल स्क्रूटनी टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए. उसके बाद फिर ट्रेनिंग का पार्ट बने और फिर माशाल्लाह से आईबीए में अब सक्सेसफुली पढ़ रहे हैं. यानी कि आईबीए के अंदर जो एडमिशन क्वालिफाई कर चुके हैं वो 470 स्टूडेंट्स हैं. इसमें से अगर आप ये बात करें तो तकरीबन 300 प्लस स्टूडेंट जो हैं अभी आईबीए के अंदर अपनी पढ़ाई जारी रख चुके हैं. अगर आप 2004 से बात करें तो तकरीबन हमारे पास 2019 तक जितने स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएट कर चुके हैं. अभी करंटली हमारे पास 2020, 21, 22, 23 स्टूडेंट्स अभी अवेलेबल हैं जो कि अभी स्टडीज को परस्यू कर रहे हैं. We definitely have हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स भी हैं, डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसमें हमारे पास आईबीए का टीसीएफ टैलेंट प्रोग्राम है, ओजीडीसीएल बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं. डिफरेंट डोनर्स हमारे प्रोवाइड करते हैं, उनकी ये रिसेप्शंस हैं. We also launched the SIN Talent program, SIN Foundation program, the couple of lately 2013 and 17 में प्लस SIN Talent की अगर आप बात करते हैं तो 2009 से लेके 2011 तक हमने इस प्रोग्राम को प्रोसीड किया. प्रोग्राम वाइज एनरोलमेंट की अगर आप बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास प्रोग्राम में एनरोलमेंट होती है वो BScs कंप्यूटर साइंस में. BS कंप्यूटर साइंस में ज्यादा स्टूडेंट्स फोकस हैं. तो ये अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखें तो फर्स्ट में हमारे पास BScs है, उसके बाद BPA, फिर हमारे पास आपके बात करते हैं तो BS अकाउंटिंग फाइनेंस है, BS इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स है, फिर आपके पास BS सोशल साइंस लिबरल आर्ट्स है, फिर सो हमारे पास BS इकोनॉमिक्स एंड BS मैथमेटिक्स है. वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर कि हमारा रिसेंटली BS मैथमेटिक्स प्रोग्राम ऑफर हुआ है जिसमें हमारे पास 22 के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स इंडक्ट हुए थे और 23 के अंदर भी हमारे पास 6 स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर किया है इन द BS मैथमेटिक्स प्रोग्राम. कुछ सक्सेस स्टोरी देख लेते हैं. ये एक सक्सेस स्टोरी है. एनटीएचपी स्टूडेंट है, इन्होंने ये हैदराबाद से बिलोंग करते थे. इन्होंने अपना आईबीए के अंदर अपना कैरियर स्टार्ट किया, टैलेंट प्रोग्राम का पार्ट बने, ग्रेजुएट हुए. आफ्टर ग्रेजुएशन उन्होंने एक इंटरनेशनल फर्म ज्वाइन की दाऊद हरकलेस के नाम से. फिर उसके बाद उन्होंने अपना एमबीए कंप्लीट किया और उसके बाद वो भी सी से और वो फिर उसके बाद उन्होंने मैकेंजी कंपनी ज्वाइन कर ली. Currently he is serving as an associate investment officer at the World Bank and is posted in the Washington DC, right? तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी various success stories हैं जो हमारे स्टूडेंट इसका पार्ट बन चुके हैं. We have another student as well, Najeed Asghar, जो कि fully funded scholarship pursue कर रहे हैं in MS Mathematics program for the Budapest University of Technology and Economics. ये बहुत IB के बड़े bright student रह चुके हैं. अगर आप बात करते हैं ओवरऑल हमारे खान के स्टूडेंट्स के हवाले से तो ये हमारा बेसिक स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है जिसमें हमारे पास जो एक से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं जिन्होंने अभी ट्रेनिंग का पार्ट बन चुके हैं, आज वो आईबीए का पार्ट हैं और प्लस उसमें से कुछ ग्रेजुएट कर चुके हैं और कुछ अभी भी अपनी स्टडीज परस्यू कर रहे हैं. अब मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ. अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दिलावर वली साहब से कि वो उसको इनकॉर्पोरेट करें. और आई रिक्वेस्ट कि अगर कोई स्टूडेंट अगर हम किसी स्टूडेंट की क्वेश्चन को मिस कर जाते हैं तो वी डेफिनेटली हैव अ सेपरेट ईमेल एड्रेस एज वेल जिसमें हमें आप अप्रोच कर सकते हैं. हमारी ईमेल एड्रेस है nthp.iba.edu.pk. ये हमारी मेन कॉन्टेक्ट डिटेल्स अवेलेबल है. हमारा फेसबुक पेज है, हमारा लिंक्डइन पेज है, हमारा ट्विटर अकाउंट है, इसके अलावा इंस्टाग्राम है, हमारा सेपरेट यूट्यूब चैनल है और हमारी सेपरेट वेबसाइट है दैट इज कॉल्ड nthp.iba.edu.pk. और ईमेल एड्रेस पर हमसे वेरियस टाइम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. यू कैन आल्सो कांटेक्ट थ्रू अवर लैंडलाइन नंबर जिसमें हमारा जो मेन एक्सटेंशन नंबर है दैट इज 2632 and 2557 and 2558.
तो whenever a student required any help, please contact us through कोई भी forum, चाहे आप email के through करना चाहें, वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, तो you can contact us in time. Yes, now over to you, Dinar साहब. जी, थैंक यू वेरी मच रिजवान साहब, आपने बड़ी डिटेल और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया आईबीए के बारे में एंड देन रिगार्डिंग द प्रोग्राम्स, और इसके अलावा जो है ये नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम के बारे में. सो जो हमारे साथ 26 प्लस स्टूडेंट्स थे अभी, हमारे साथ कोई 10 तक है. एनी स्टूडेंट जो क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो काइंडली अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, या अगर आप अपने क्वेश्चन को चैट में भी अगर चैट में आप लिख ले तो फिर हम रिजवान साहब से पूछ सकते हैं. तो जी, कोई क्वेश्चन from student, if there is any question you can ask directly while coming off mute, and then you can ask from रिजवान, अदरवाइज आप चैट पे लिख सकते हैं. रिजवान साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो डिफरेंट प्रोग्राम्स आपने बताया, अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स, इसमें जो एडमिशन का जो क्राइटेरिया है और जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं, एक आईबीए का अपना टेस्ट है, दूसरा जो है एसएटी है. सो उसकी जो मेरिट है वो मेरिट अक्रॉस द प्रोग्राम सेम है कि नहीं? अगर इकोनॉमिक्स में जो है मेरिट डिफरेंट है तो कंप्यूटर साइंस का जो मेरिट है वो डिफरेंट होगा. तो व्हाट अबाउट द क्राइटेरिया, ये जरा अगर क्लियर करें तो. दिनेश साहब, आप गाइड करेंगे सर इसमें? जी जी, इसमें ये होता है कि हमारे जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं वो दो टाइप के टेस्ट होते हैं. बीएस इकोनॉमिक्स, बीबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड बीएस सोशल साइंस का एक सिंगल टेस्ट होता है, जिसमें मैथमेटिक्स का जो लेवल होता है मैट्रिक या मैट्रिक लेवल से नीचे होता है. और टेस्ट सिंगल एक टेस्ट कंडक्ट होता है, और उस टेस्ट का जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो हर प्रोग्राम के लिए डिफरेंट कट ऑफ आते हैं. तो हर ईयर डिफरेंट कट ऑफ अनाउंस आईबीए करता है. ये डिपेंड करता है कि टेस्ट कितना हार्ड था, कितना इजी था, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया. तो इस बुनियाद पे हर एक प्रोग्राम का कट ऑफ डिसाइड होता है. जो हमारा सेकंड टेस्ट होता है वो बीएस मैथमेटिक्स, बीएस इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स और बीएस कंप्यूटर साइंस के लिए होता है. उसमें जो मैथमेटिक्स का लेवल होता है वो इंटरमीडिएट लेवल तक का होता है, और उसमें भी जो कट ऑफ सेट होते हैं वो हर प्रोग्राम के डिफरेंट होते हैं, और अगेन वो डिपेंड करते हैं कि टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या है और कितने स्टूडेंट से अप्लाई किया हुआ. राइट, थैंक यू जुनैद साहब. और दूसरा क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द टाइमलाइन. ये जो एडमिशन है ये एनुअली साल में एक बार एडमिशन जी, ऑफर साल करते में एक बार होता है. हम लोग सिर्फ फॉल अंडर ग्रेड जो एडमिशन हैं, अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स के लिए जो एडमिशन है वो सिर्फ फॉल के लिए करते हैं. ओके, राइट. एक मरतबा. जी अगर जी. इसमें और आसानी ये होती है कि हम दो राउंड्स करते हैं. एक राउंड हमारा होने वाला है, जैसे एक राउंड हमारा फरवरी मार्च में हो जाता है, और जो सेकंड राउंड होता है वो जून जुलाई में होता है. और कुछ स्टूडेंट्स के पास चॉइस होती है कि दोनों राउंड से अपेयर हो सकते हैं. मगर एडमिशन दोनों राउंड्स में जो होते हैं वो एक ही एल्ड में एक ही मरतबा होता है, और फॉल के लिए होता है. अच्छा, राइट 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 राइट. ओके. दिनार साहब, मैं इसमें एक चीज एक हाईलाइट करना चाहूंगा. ये हमारा मेन एडमिशन शेड्यूल है फॉर द फॉल 24. इसमें हम लोग ना हम लोग आप लोग को देखिए, विजिबल हो रहा है सर आपको? जी जी जी, विजिबल है जी, स्क्रीन इसमें विजिबल. ना तो इसमें ना हमारा जो राउंड 1 का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है फॉर द बीबीए, बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस प्रोग्राम, ये शेड्यूल है 17 फरवरी को, राइट? और इसी का राउंड 1 होगा बीएस ईएम इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स सीएस प्रोग्राम एंड बीएस मैथमेटिक्स. इसका राउंड 1 होगा मार्च की 10 को. और सिमिलरली जो स्टूडेंट हमारा अगर एनटीएच में अप्लाई करता है तो हम उसको आईबीए के जो राउंड 2 का टेस्ट है, दैट इज शेड्यूल इन जून 30 एंड जुलाई 21, हम उस टेस्ट के लिए इसको प्रिपेयर करवाते हैं. तो ये मेजर टाइमलाइंस है. इसको अकॉर्डिंगली स्टूडेंट फिर अपने हिसाब से इसको मैनेज कर रहा होता है. अब अगर कोई स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर मैंने राउंड 1 के लिए अप्लाई कर दिया है एंड आई आल्सो वांट टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई एनटीएचपी प्रोग्राम एज वेल,
तो अगर इसमें सिनेरियो हम ये बिल्ड करते हैं कि अगर स्टूडेंट ने आईबीए के राउंड 1 के टेस्ट जो मार्च 10 को भी शेड्यूल है, फेब 17 को भी शेड्यूल है, इसमें बैठ जाता है, और अगर इसका टेस्ट पास हो जाता है और वो एनटीएसपी का टेस्ट में भी अपेयर हो जाता है, तो देन हम उस स्टूडेंट्स को उस इंटरव्यू प्रोसेस के जब हम पार्ट में इसको जब हम पार्ट बनाएंगे तो उसमें हम उनसे पूछते हैं कि अगर आप राउंड 1 के टेस्ट में बैठे थे तो आपका रिजल्ट क्या था, और अगर रिजल्ट अगर आपका आ गया था तो उसको आपने क्या क्लियर कर दिया था, तो वो उसकी क्लैरिटी पर हम उसको यहाँ पे उसको ये कहते हैं कि हम उसको हम फाइनेंशियल एड की तरफ रिकमेंड करते हैं, रादर देन हम उसको एनटीएसपी का पार्ट बनाए। क्योंकि वंस अगर किसी स्टूडेंट ने आईबीए का टेस्ट पास कर लिया तो हम उसको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप डायरेक्टली फाइनेंशियल एड का पार्ट बने और नीड बेस्ड के स्कॉलरशिप के लिए आप उसको अप्लाई करें। लेकिन फिर हम उसको, क्योंकि एनटीएसपी का जो मेजर फोकस है, जो बेसिक जो विजन है ना, वो ये कि स्टूडेंट को इतना एलिजिबल करवाना और उसको इतनी उसके अंदर वो स्किल्स डेवलप करना कि वो आईबी के एप्टीट्यूड टेस्ट को एंट्रेंस को आसानी तौर पे पास कर ले, तो वो एक चैलेंज होता है। तो उसके लिए हम स्टूडेंट को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई आप डिसीजन लें, चाहे आप राउंड 1 के टेस्ट में बैठना चाहो या राउंड 2 के टेस्ट में, तो वो डिसीजन उसका अपना है। हाँ, अपॉर्चुनिटी है, अगर वो राउंड 1 का टेस्ट पास नहीं कर पाता और सिमिलरली एनटीएसपी के टेस्ट में बैठ गया और वो टेस्ट पास कर लिया, तो देन फिर वो अपनी जो एनटीएसपी की जो प्रोसेस है उसको फॉलो करे और फिर वो ट्रेनिंग का पार्ट बने, ट्रेनिंग के पार्ट के बाद आईबी के राउंड 2 के टेस्ट में बैठे, अगर वो पास कर लेता देन फिर वो एनटीएसपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो दिस इज द क्लियर वर्जन साइड एज वेल। Right. So, last question. So from my side, last question ये है कि जो ये टैलेंट हंट प्रोग्राम है फॉर साल में एक बार आप इसको रन करते हैं, so इसमें कोई फिक्स्ड आपका जो कोई वो क्राइटेरिया क्या होता है कि मैं कोई फिक्स स्लॉट्स होते हैं कि नहीं, आप जो भी स्टूडेंट्स आईबीए के रिक्वायरमेंट्स को क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, he or she can be part of it? डॉक्टर दिनेश साहब। जी जी, देखिए इनिशियली जो हमारा जो प्री टेस्ट होता है और इंटरव्यूज होता है, तो हम 150 स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं यूजली। तो हम 150 स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं और उन स्टूडेंट्स के बाद जितने क्वालिफाई करते हैं आईबी के टेस्ट के लिए, तो हम उनको अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। तो ये Okay. है कि हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हमने 2000 और 3000 स्टूडेंट्स का टेस्ट कंडक्ट किया है, तो और तो उसमें से कुछ बच्चों ने टेस्ट पास करते हैं, फिर वो इंटरव्यूज के लिए अपेयर होते हैं। तो इन द एंड हम 150 स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं आईबीए कराची में, और 150 स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं और उनको आईबीए के टेस्ट के लिए अपेयर करवाते हैं। और उनमें से जितने स्टूडेंट्स अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उनको फिर हम अपने जो डिग्री फेस जो प्रोग्राम है उसके लिए लेके जाते हैं। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच जुनेद साहब और रिजवान साहब, और जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे स्टूडेंट जो हमारे पास आएगा हम राउट कर लेंगे, और इसके अलावा हमें जो है कोई और सेशन अरेंज करना है या एनी फैसिलिटेशन विच वी कैन ऑफर, विल डू दैट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर द डिटेल्स, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। तो ये काफ़ी कम्प्रिहेंसिव और डिटेल प्रोग्राम था और बड़ा इलोक्वेंटली इसको पेश किया गया। सो फ्रॉम आवर साइड आई एक्सटेंड आवर utmost thanks to you. Thank you very much. ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।